2012 इंडिया टुडे कॉन्क्लेव एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। भारत के सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के जो ताकतवर लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं, उनको बुला करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जो एक नई दिशा दी जाती है, उनके ऊपर जो बहस छिड़ती है और उससे जो निष्कर्ष निकलता है, इस मंथन का, इस चिंतन का देश के लिए बहुत बड़ा उपयोग होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ब्लैक मनी, करप्शन और करप्ट वोटर सिस्टम, ये इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और जो इस देश का युवा कैरेक्टर, कैरियर और कंट्री के बारे में जो उसको कंफ्यूजन है, मुझे लगता है वो बहुत कुछ इससे सीखेगा और आखिर इस देश की समस्याओं का समाधान इन 3 मुद्दों से ही होगा और उसके ऊपर बहुत ही मजेदार बहस थी। None of you present here need any introductions to the two gentlemen who are sitting here, but a little bit of reference to context as to why they are here and why everybody, and especially on Twitter and social networking sites, everybody is talking about this face-off, and we're not calling it a discussion. We expect it to be a face-off, and it'll be. These two gentlemen have very, very diverse views. I've interacted with both of them, Chetan on Twitter, Baba Ramdev, while I've taken questions from them. Unlike many politicians that we see these days, these two gentlemen may have their views, and they're entitled to that, and they will never shy from a question. They will take those questions. Baba Ramdev has some very, very, some people might say, old views on sexuality, on homosexuality, and some very rigid views on what should be done on politics. Chetan, of course, on the other hand, will tell you completely different things. My interaction with them and my experience with them has shown that they are similar also on very many things, like the connect that they have. I went down to Varanasi and I was thinking about the characters that he had sketched in 2020. And Baba Ramdev, you just have to go to one of his shivers. I followed him at Ramlila Maidan, and you just have to go and see the amount of following that they have. So you love him, you hate them, but you cannot ignore the fact that they are hugely popular in terms of people who follow them, and they will now, and that's what they're trying to do, expand their horizons. And that brings us to the topic that we have today, politics and pranayam. When Baba Ramdev speaks, he's going to try and explain what is he trying to do when he says that he wants to contest elections. Why is he not limiting himself to pranayam and yoga? Why does he want to have a wider social role? Chetan Bhagat obviously has some divergent views on that. So let's start with Baba Ramdev, try to understand what he's trying to do, and of course we'll question him on his controversial views as well. Baba Ramdev, आप शुरू करें। राजनीति से ऐसी घृणा हो गई, नफरत हो गई इस हिंदुस्तान को कि कोई राजनीति की बात करे तो मानो उसने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया, पाप कर दिया। यदि राजनीति पाप है तो जितने लोग राजनीति में हैं ये सब महापापी हैं। और कौन सी चीज ऐसी है जो राजनीति से नहीं चलती? इंडस्ट्री राजनीति से चलती है, एग्रीकल्चर राजनीति से चलता है, सारी सर्विसेज को राजनीति कंट्रोल करती है, सारे देश की इकोनॉमी को राजनीति कंट्रोल करती है। राजनीति से आपके घर में पानी आता है, हम सड़क पर चलते हैं तो राजनीति हमें बताती है कि लेफ्ट साइड में चल रहा है या राइट में चलना है। अमेरिकन लोग रोड के ऊपर राइट साइड में चलते हैं क्योंकि उन्होंने कहा जैसे अंग्रेज चलते थे उससे हमें उल्टा चलना है। हिंदुस्तान में हम स्विच दबाते हैं तो नीचे की तरफ ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है। अमेरिकन लोगों ने बोला हमें उल्टा करना है। राजनीति सब कुछ चलाती है, तो राजनीति को चलाने के लिए अच्छे लोगों को आवाज जरूर उठानी चाहिए, इसलिए मैं आवाज उठाता हूं और मैं इसको गलत नहीं मानता। रही बात कि क्या एक किसी योगी को राजनीति की बात करनी चाहिए, तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता हूं। मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना, लेकिन मैं वोट भी करता हूं और सबको भी कहता हूं वोट करो। दरअसल राजनीति गलत नहीं है। हां, राजनीति में कुछ लोग जरूर गलत हैं और आज तो बहुत लोग ज्यादा ही गलत हैं। यदि हिंदुस्तान की राजनीति ठीक होती तो इस देश का लाखों करोड़ रुपए देश और विदेश में ब्लैक मनी के रूप में जमा नहीं होते, जिसको हम अनअकाउंटेड मनी बोलते हैं, डर्टी मनी बोलते हैं, काला धन बोलते हैं। चाहे वो
भ्रष्टाचार करके जमा किया गया हो, चाहे वो देश में टैक्स चोरी से जमा हुआ हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग के द्वारा गलत हुआ हो, चाहे वो और दूसरे अनैतिक कार्यों से हुआ हो। यदि राजनीति ठीक होती तो इस देश की अर्थव्यवस्था, जो आज विश्व में चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था है, जापान, चीन, अमेरिका हमसे आगे, यदि राजनीति ठीक होती तो आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होता और वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर होता। लेकिन यह नहीं हो पाया, क्योंकि जो राजनीति की शिखर पर बैठे लोग हैं, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था में तब्दील कर दिया। यदि राजनीति ठीक होती तो इस देश में करप्शन नहीं होता। और मुझ जैसे लोगों को योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म की और योग शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र की और राजनीति शास्त्र की बातें नहीं करनी पड़ती। इस देश का कितना अपयश किया है इस गलत राजनीति ने। इसलिए मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, निस्वार्थ भाव से, आज तक करीब इस देश में हमने 11 करोड़ लोगों की सभाएं की हैं, कम से कम भी नहीं होगा तो 7 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। और अभी यहां के बाद मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं, फिर पूरे देश में दोबारा से हम घूमेंगे, दोबारा से देश में जागरण करेंगे। और 2012 का वर्ष इस देश में राजनीतिक परिवर्तन का, आर्थिक परिवर्तन का, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का वर्ष होगा। मैं इतनी सी बात कह करके आगे के हमारे भाई आकाश को, चेतन को और आप सबको यदि किसी भी तरह के कोई प्रश्न मुझसे पूछने हो तो उसके लिए आमंत्रित करता हूं। और आपने मुझे आमंत्रित किया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, मैं उसके लिए आभार व्यक्त यूं करता हूं क्योंकि पहले तो मुझे अछूत समझा जाता था कि ये गांव का देसी आदमी जिसको अंग्रेजी आती नहीं है, वैसे आती है मुझे अंग्रेजी, सिखा दी जमाने ने। अभी वहां बाहर बैठा था तो थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूं, लेकिन सभा में नहीं बोलता, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन एक गांव का आदमी जिसके अनपढ़ मां बाप और उन खेत खलियानों से, गांव की मिट्टी भरी उन राहों से चल करके आपके बीच में बैठा है, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इतनी सी बात कहता हूं कि इस लड़ाई को बिना किसी स्वार्थ के हम एक अंजाम तक लेकर के जाएंगे और अपनी आंखों के सामने भारत कुछ ऐसा बनाएंगे कि भारत विश्व की चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था नहीं, भारत विश्व की पहले दर्जे की अर्थव्यवस्था भी बनेगा। और अध्यात्म में जो पतन हुआ है उसको भी हम उत्थान पर लेकर के जाएंगे और भारत आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करे, इस कामना के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। Baba, for the benefit of many of our delegates who've come in from outside India, just a little bit of a translation of what Baba Ramdev has been doing and what he said just now. Basically, his whole issue is that politicians haven't been able to do what they were supposed to do, and that is why he's been forced to come into the arena of politics. He's not apologetic about using his popularity as far as yoga guru Baba Ramdev is concerned, and he is, trust me, worshipped as far as that is concerned, and he's taken that to the political stage because he says that politicians have failed. Obviously, the question arises is, if Baba can do politics, then should politics also come down and do yoga? We'll get to that question in just a bit, but Chetan, your opening remarks first. नमस्ते बाबा जी। बाबा जी, जो भी मैं बोलूं मुझे भस्म मत कर देना आप बस, ठीक है? मुझे बड़ा डर, पहली बार जिंदगी में किसी बाबा के साथ बैठ के जरूरत कर रहा हूं। और ऑब्वियसली मैं जनरल टॉपिक पे रहूंगा, जो है स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स। मेरा कोई पर्सनल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूं, बट एक जनरल इशू काफ़ी देखने में आया है एंड पिछले 1-1.5 साल में कि स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का थोड़ा मिलन हो रहा है। पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स का होता था, अब स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का भी होने लगा है। आप ऑब्वियसली उसमें सबसे प्रोमिनेंट, काफ़ी सोचा मैंने कि क्यों हो रहा है ये। तो कोई भी सोसाइटी के लीडर्स होते हैं, उनमें बड़ी स्ट्रांग मॉरल वैल्यूज की जरूरत होती है। इंग्लिश और हिंदी? हाउ? इंग्लिश इट्स इंग्लिश, ठीक है? यू कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स, देन यू शुड, इट्स ओके, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल। एनी सोसाइटी that is led, there needs to be certain moral values. They don't have to be very greatest moral values in the world, but the leaders have to have some moral values which have been
disregarded, missing, and it has led to India being what it is today. And therefore, there is a big void. You know, people are feeling something is missing. And those moral values are often found in spiritual people. And therefore, there's been a natural attraction. People feel that, you know, whatever I'm missing in my top leaders, maybe spiritual guru number 1 or 2 or 3, these people are the people who will, you know, give me what we are looking for. And that's where there has been a little bit of an entry into politics in the spiritual arena. I mean, even if you don't have a political party, you in fact do, but you can still be in politics by trying to influence. In some ways, we are all in politics. All journalists are in politics. Columnists are in politics. So that is why it is happening. I don't judge it. There is nothing wrong in it. कोई गड़बड़ नहीं है. आपको और there is no judgment. आपका background, आप गांव से हैं, चाहे you know South Delhi से हैं, it doesn't really matter. और आने की बात सही है, लेकिन एक आपको चीज का ध्यान रखना है कि जो all the spiritual people that are there, people put a lot of faith in them. Of course, other famous people also sometimes join politics, like actors, writers maybe sometimes, but actors we've seen a lot in the country, and people vote for them also. But the expectation is very different. The level of faith is very different. They feel, okay, he's a popular guy, I know him, maybe let's give him a chance. But with a spiritual person often, people have absolute faith in that you can do no wrong, that you are almost a demigod for them. Now you're using that to become a politician, which is fine. Again, nobody can stop you. It's a free country, and you should. But good values are not the, firstly, and we'll talk about what good values can be and cannot be, but good values is not the only thing needed to be a politician. You do need some leadership. You do need some ideas. You do need some policies. You do need to know how the country works, which I'm sorry to say many of them don't. There is no clue how the economy works. There is no clue on how, yes, there is a problem of black money, yes, there is a problem of corruption, but like banning 500 rupee notes, what about the people who have legitimate 500 rupee notes? You know, I'll give you a chance. मैं आपको मौका दूंगा, मेरे को एक मिनट दो. मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको ऐसे डर क्यों माइक लग उठा रहा है? लिया आपने. श्राप मत दे देना प्लीज. नो श्राप्स, नो भस्म, प्लीज. None of that going on here. ये आज केंद्र सरकार की दुर्गति मेरे श्राप से नहीं हो रही, उनके कर्मों से हो रही है. हाँ, ठीक है. तो मेरे कर्म मेरे को भी ले डूबेंगे, मुझे पता है. पर आप ऐड मत करना उस पे प्रेशर. बट यू नो, you have to know how it works, and you don't. And that's the reality of it. It's policies, it's ideas. You are bringing people along, they're following you like Pied Piper, and they're having a lot of expectations from you, believe it or not. And you will lead them to an India which belongs to the 16th century with some of your policies. It's not just policies, some of the beliefs you carry. And I have seen, nobody is here to say this is the right way or wrong way, as a neutral person, but at least be inclusive. What scientific basis do you have to say homosexuality is a disease? It's nonsense. You're talking gibberish, and it is isolating an entire community. And it is not fair that you do that. And that is not what I want a politician to be. It's okay you do it in your yoga camp and you come up with, you say you have poses to cure homosexuality. I want to know what those poses are. I want to know how you measure that this guy is a homosexual and now he's... कितने homosexuals बैठे हैं आप इनके साथ भी? नहीं, I want to know... मतलब homosexuality, politics, pranayam, बीच में homosexuality... I'll tell you, because your values are important. The way you treat certain, it's an issue which has been divisive all over the world. But any politician who comes there has to listen to both sides. You can't just say... आपके माँ बाप homosexual होते तो आप यहाँ मेरे से बैठ के बात नहीं It's not funny. I'm not being funny here, okay? नहीं, it's not being funny. You are talking बोलने about... दीजिए अभी आपको फिर मौका देंगे. There is a community which needs to be understood. Even the court today has said many countries in the world have allowed marriages. I'm not saying we have the right answer. मैं एक साइड नहीं ले रहा हूँ बाबा. शायद आप सही भी हो. अगर आप सही हो तो बाबा बोल रहे हैं फिर. फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहते. आप अगर सही हैं तो एक रिसर्च का पेपर प्रोड्यूस कीजिए. आप बिना किसी बात के ऐसे पॉलिसीज, इतना बड़ा आपको स्टेज मिला हुआ है. अगर मेरे को भी स्टेज मिलता है, मैं भी किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना शुरू कर दूं कि ये तो इनमें तो डिफेक्ट है, ये क्या तरीका है? यू नो, दैट इज नंबर वन. यू एंड देन व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट अगर मैं
to be a spiritual person, you have to give up alcohol, you have to give up sex. Can't I have a glass of wine and care for the country? I mean, really, you know, there has to be some practicality. अगर आपके हाथ में सत्ता थमा दी गई, तो करप्शन पता नहीं जाएगी या नहीं, तो हमारा देश कहां जाएगा? You know, that is a serious danger. मतलब होमोसेक्सुअल लोग ही देश चला रहे हैं। नहीं, ये हाँ, आप लेकर के बैठ गए सारी बात। मैं एक चीज पर मत नहीं, नहीं, चलिए, दूसरी उसको चीज छोड़ भी है। दिया, हाँ, उसका उसको छोड़ दिया मैंने। हाँ, ठीक। मैं कह रहा हूं कि आपकी साइंटिफिक थिंकिंग मिसिंग है, जो हमारे देश को चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप योगा कराते हैं, योगा, लेकिन आप 2 मिनट और बोलने दीजिए उनको, फिर आप बोलिए। 2 साइंटिफिक मिनट और। रीजनिंग, वो सिर्फ मैं एक, दूंगा सारी रीजन। ठीक है, नहीं, रीजन आपके थ्योरीज में है, देयर इज नो डेटा टू साइंटिफिक रीजन, ठीक है, और उसकी वजह से आप इंक्लूसिव नहीं है। ये सब भी चीजें मिसिंग हो जाती हैं, तो वो स्पिरिचुअल पर्सन पॉलिटिशियन बन पाएगा कि नहीं, ये बड़ा गैप है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं जो आपको, मेरे को लगता है काम भी आ सकते हैं। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। सेकंड थिंग इज टू बी अ पॉलिटिशियन यू नीड सम टैक्ट। आपको एक कला है, उसमें भी एक रचना करनी पड़ती है पॉलिटिशियन के लिए। आपको इतना अच्छा मौका मिला था जब आपके साथ एक गलत व्यवहार हुआ था कि पुलिस की फोर्स आई थी, आपको सिंपैथी मिल गई थी। सिंपैथी से बड़ी कोई चीज नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। आज भी बैठे हैं लोग सिंपैथी के नाम पे। एक टाइम पे लोगों ने उन्हें सिंपैथी दी थी, दे आर स्टिल इन पावर टुडे। आपको सिंपैथी मिली थी, आप पूरा सिंपैथी प्ले कर सकते थे। आपने 18 करोड़ों रुपए के टेंट लगवा दिए, आप 2-4 ढंग के एडवाइजर रख लेते, जो आपको कोई काम की बात है। मुझे लगता है यू नो, आप कर क्या रहे थे वहां? आप योगा गुरु हैं। आपके लिए मैं जो है जरूर मैं जगह रखूंगा। मेरे पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे। आप, अच्छा, मुझे नहीं पता था इतने महंगे हैं आप। नहीं सर, कुछ लोगों की कीमत अलग पे, हर चीज वो, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। मैं आपको सीरियसली आपके एग्जांपल देखिए, मैं और किसी को भी कह रहा हूं। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर न्यू पीपल टू एंटर पॉलिटिक्स। बिकॉज लोग कहते हैं ये तो बुरे तो बैठे हैं, जो आया वो और भी अजीब था। आप योगा गुरु हैं, आपको क्रोध आ रहा है। योगा गुरु को कैसे क्रोध आ मैं सकता है? हंस रहा हूं तब भी आपको गुस्सा लग रहा है। मैंने टीवी पे देखा, आपने बोला अगली बार मैं 11,000 लोगों की सेना खड़ी कर रहा हूं, और कहां है सेना? तैयार हो रही है आपकी? किधर रहते ना? कुछ भी बोल दिया ना, बस ऐसी मस्ती में बोल दिया आपने। टीवी के कैमरा ऑन है, कुछ एंटरटेनिंग बोलना है, ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिकली करेक्ट बनने का एक टर्म बनी है, पॉलिटिकली करेक्ट। वो क्यों बनी है? ऐसे नहीं कि आप कितनी देर बोलते रहेंगे, उत्तर कितनी देर में? अच्छा, एक मिनट और, लास्ट 1 मिनट। आप अब जो मेरे ऊपर कह रहे हैं अपने ऊपर भी देखते रहिए। मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, मैं तो जान ही रहा राजनीति में। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो समझिए कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं चलती है, थोड़े और चीजें भी, स्किल्स चाहिए, इकोनॉमी की समझ चाहिए। नहीं है तो लोग रख लो जिनको समझ है। और दूसरी बात यह कि एक इंक्लूसिव आदमी चाहिए जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके, बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में। And please don't make it worse for other people who are entering politics, we really badly need, by making statements which will backfire for all the people. मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं कि गलत हो रहा है, लेकिन उसको कैसे ठीक करना है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। That's all. अब बोल सकता हूं? पहली बात कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मैं, क्योंकि ये मुख्य विषय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी शब्द बोलना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने कहा कि अनीति को कभी भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। और होमोसेक्सुअलिटी इस देश की मुख्य धारा की विचारधारा नहीं हो सकती। मैं उसको इमोरल भी नहीं कह रहा हूं, मैं उसको जो है अनसाइंटिफिक भी नहीं बोल रहा हूं, नॉन साइंटिफिक भी नहीं कह रहा हूं। कि मैं उसके बारे में कोई ज्यादा कमेंट आज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे विषय पर ज्यादा बात करनी है। यदि को हम, क्योंकि पिछली बार मुझे यहां पर जो विषय रखा गया था वो भोग और योग रखा गया था, इसलिए उस विषय पर मैंने ज्यादा बात की थी। आज मैं वापस पॉलिटिक्स, ब्लैक मनी और करप्शन के ऊपर थोड़ी सी बात मुख्य रूप से करना चाहूंगा। भाई चेतन ने बात की कि हमें साइंटिफिक बात करनी चाहिए। इस देश की जो इकोनॉमी है उसमें 97% बड़े नोट्स हैं, बड़ी करेंसी है। किसी भी देश की इकोनॉमी में 2 से 3% करेंसी अच्छी मानी जाती है। भारत की इकोनॉमी में जो करेंसी है
आप ये तर्क दे सकते हैं कि भारत में कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में लोग रहते हैं, वो सारे भी तर्क उतने जायज नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा संशोधन चाहिए। और जिस देश के करीब 84 करोड़ लोगों को रोज 20 रुपए खर्च करने के लिए नहीं मिलता है, उनके लिए 500,000 रुपए के नोट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जितना भी ये जो ब्लैक मनी का काम चल रहा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन उसका इजी होता है, उसका छिपाना इजी होता है बड़ी करेंसी का। इसलिए माना कि उसमें गोल्ड है, डायमंड है, शेयर्स हैं, लैंड है, दूसरी भी चीजें जो है मायने रखती है करप्शन में, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका होती है बड़ी करेंसी की, जिसको छिपाना और मैंने कहा उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होने से आज जितने भी हिंदुस्तान के अंदर छापे पड़ते हैं 99% आपको वहां बड़ी करेंसी मिलती है। मैं नहीं कहता कि बड़ी करेंसी पूरी खत्म कर दीजिए, लेकिन उसको मिनिमाइज कीजिए, 97% नहीं, आप उसको बड़ी करेंसी को आप 10-20% पर लाइए, 80-90% दूसरी करेंसी लाइए जिसका आम लोग प्रयोग करते हैं। सेकंड, इसके ऊपर यदि कोई पूरी बहस करना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने यदि ब्लैक मनी की बात की और उसके सोर्स की बात की तो पूरी साइंटिफिक बात की है, उसको वापस लाने की प्रक्रिया की बात की। विदेशों में जो काला धन जमा है उसका वापस लाने का इफेक्टिव प्रोसीजर क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने 3-4 सुझाव दिए और आपके बीच में भी मैं उनको शेयर करना चाहता हूं। आखिर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके इससे पहले हम अपने देश को तो ठीक कर सकते हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में हम क्यों नहीं कर सकते? और चाहे मॉरिशस रूट से पैसा आता है, चाहे और कहीं से आ रहा है, और मॉरिशस तो हमारे पूरे प्रभाव में, हम बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन अपने यहां भी कर सकते हैं और उनके यहां भी करा सकते हैं। और इसका मॉरिशस रूट से पैसा आ रहा है, कहीं से भी उसका रूट का पता लगा सकते हैं। चाहे वो दूसरी बात जो है प्रॉमिसरी नोट के से इस देश के अंदर हजारों और हो सकता है लाखों करोड़ रुपए के आसपास भी पैसा आया हो। एक और मिनट बाबा जी, उसके बाद बस। फिर मैंने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन कीजिए। जनरल पर्पज एफआईआर का कैसे पता लगाएंगे? किसी के माथे पर तो नहीं लिखा। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन करके जनरल पर्पज एफआईआर का दर्ज होने का होना एक प्रोविजन कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी देश करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग को क्राइम मानते, टैक्स चोरी को क्राइम नहीं मानते। और यदि हमने जो है वहां से पैसा वापस लाने के साथ देश के इंटरनल इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी है, चाहे इलीगल माइनिंग में है, चाहे ड्रग्स में, चाहे कालाबाजारी में है, चाहे पॉलिटिक्स में है या रियल एस्टेट में, उसके लिए भी हमने 3-4 इफेक्टिव प्रोसीजर्स की बात की है। तो हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाने की बात कर रहे हैं। चाहे करप्शन के बारे में, चाहे वो लोकपाल के बारे में भी बात आई, चाहे उसकी जो एग्जिस्टेंस हमारा सिस्टम उसको इफेक्टिव बनाने की बात आई, चाहे नैतिक मूल्यों के आधार पर कोई भी देश चलता है उसको किस तरह से हम अपनी शिक्षा से लेकर के बचपन से लेकर के आगे तक उसको लेकर के जा सकते हैं। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। यहां बात की जा रही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की। मैं एक ही प्रश्न करूंगा। भारत की एक बहुत बड़ी संस्कृति सभ्यता है, पूरी दुनिया का अपना अपना सिविलाइजेशन अपने अपने वक्त से पहचाना जाता होगा। भारत का सिविलाइजेशन जो हमें ज्ञात है, भगवान रामकृष्ण से लेकर के गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के और हमारे तमाम ऋषिमुनि और वर्तमान के जितने भी संत हुए हों, चाहे महात्मा गांधी हुए हों, चाहे महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, या जो है श्री अरविंद घोष योगी हुए हों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योगी होकर के कुरुक्षेत्र में यदि सुदर्शन चलवा सकते हैं, तो मैं तो किसी की हत्या की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सामान्य सी बात कर रहा हूं कि इस देश में सदाचार बढ़ना चाहिए। और मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से कहीं पर भी अवैज्ञानिक हूं, अतार्किक हूं, अव्यवहारिक हूं, बल्कि हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग जब इस दिशा में सोचेंगे तो ही इस देश में सच्चा परिवर्तन आएगा। ये मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। बाबा, जो चेतन ने जो एक दो चीजें आपसे पूछी उनके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। बात होमोसेक्सुअलिटी की नहीं है, बात अल्कोहलिज्म की नहीं है, बात साइंटिफिक तरीकों की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना धन है, और आपने अपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कितने ज्यादा फिगर्स बोले हैं, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कितना काला धन बाहर है, आप बता पाएंगे हमें या नहीं? देखिए, काले धन के बारे में मैं कोई जांच एजेंसी तो नहीं हूं,
अनुमानों के आधार पर बात की जाती है, और अनुमानों के आधार पर अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक मैगजीन है बिजनेस जो है डाई वेल्ट, और उस मैगजीन का ही, जो कि जर्मनी की लग्जरी और बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है, उसका हवाला देकर के बिजनेस इनसाइट, ये वेबसाइट है यूएस की, जिसको कि वहां काफी मान्यता प्राप्त है। मैं बाबा जी किसी बारे में एक अनुमान पेश करता है तो उसके में पीछे में लॉजिक दूंगा, तो आप लोग हाय तौबा मचा देते हो। अब उस मैगजीन ने छापा कि दुनिया के जो टॉप पॉलिटिशियंस, जो सबसे रिच हैं, उसमें से सऊदी अरबिया के अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला और जो है हसन अल बोल किया ब्रूनी है कोई, और फिर मिखेल के बाद में चौथा नंबर भारत के पॉलिटिशियन का है। उसके बारे में हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं छपा कि उसके पास में कहीं 1000 करोड़ रुपए भी है, और उस मैगजीन में छापते हैं कि उनके पास में करीब 93,000 करोड़ रुपए, करीब 1 लाख करोड़ रुपए होने की उन्होंने जो है अपने प्रमाणित, उन्होंने उनके जो भी रिसोर्सेज, ये तो एक पॉलिटिशियन की बात है। ये एक मैगजीन में एक लिखा गया है, उसके बारे में यहां कोई प्रमाण नहीं है, नहीं तो यहां भी जांच होती। मेरा सवाल है कि हमारे पास कोई आंकड़े अभी तक कॉन्क्रीट नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो नोटों के बारे में, रुपए से लेकर के और 100 लाख करोड़ रुपए तक ब्लैक मनी बाहर होने की बात की जाती है। ये क्या नोटों में ले गए? मैं आपको बात बता रहा हूं, नोटों में लेकर गए हैं बाहर ये जो पैसे हैं, ये कैसे लेके गए वो अलग बात, आप पहले आंकड़ा पूछ रहे हो, उसकी बता रहा हूं। जाता कैसे है उसके दूसरे प्रोसीजर, और इन्वेस्टिंग है, अंडर इन्वेस्टिंग है, जैसे मैंने कहा प्रोमिसरी नोट से वापस लेकर के आते, लेकर के जाने के लिए हवाला और दूसरी चीजें अपनाते, वो सेकंड इशू है। तो पहले तो इस देश की इकोनॉमी का साइज, और इकोनॉमी की साइज के अनुसार सभी मानते हैं कि जितनी भारत की इकोनॉमी है उसका करीब आधा बाहर है। अब इस देश की इकोनॉमी को आप केवल जो पेपर पर बैलेंस शीट पर आ गया उसी को हम इकोनॉमी मानेंगे, या दूसरी जगह जो मैंने कहा, चाहे वो रियल एस्टेट में है, चाहे वो जो है इलीगल माइनिंग में है, चाहे वो ड्रग्स में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, काला बाजारी में है, जो दूसरा पैसा उसको नहीं गिनेगी। तो जितनी देश की इकोनॉमी है उसके करीब आधा बाहर है, ये तो माना ही जाता है। इकोनॉमी तो जीडीपी होती है, आधा बाहर तो सेविंग्स है, कैसे, मतलब व्हाट इज द कनेक्शन? देखिए व्हाट इज द कनेक्शन? देश की जीडीपी टॉकिंग अबाउट। देखिए अब आप मुझे ये बताओ, आपकी जर्मनी के एक लोग तो आपके बारे में क्या क्या लिखते रहते हैं? नहीं, मेरे बारे में तो अच्छा ही बताओ। तो आप मेरे बारे में मैं आपको भी चेतन चैलेंज देता हूं। नहीं, मैं देखिए आप प्लीज, आप बाबा आप प्लीज देखिए, मैं बात कर, आप अपनी बात कहने का हकदार हैं, तो आप मेरी बात को कैसे डिनाई कर? मैं कह रहा हूं कि अनसब्सटैंशिएट मैगजीन आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो मैं तो किसी का नाम अभी भी नहीं बोला हूं। नहीं, नाम तो और मेरे बारे में मैं जहां बैठा हूं, इस जो है, मैं आगे की ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, छापते रहते हैं रोज। हाँ, तो फिर हमारे, एक मिनट, फिर इसलिए मैं उस बात को दोहरा रहा हूं वापस कि स्वामी रामदेव के नाम देश और दुनिया की सारी एजेंसियां तो हिंदुस्तान की मेरे पीछे लगा चुके हैं सरकार, कोई एजेंसी नहीं बची। 1 इंच जमीन और 1 रुपए, मैं तो कहता हूं ब्लैक तो बात छोड़ो, व्हाइट में बता दो, ब्लैक या व्हाइट, और 1 इंच जमीन ब्लैक या व्हाइट कहीं पर भी बाबा के नाम हो तो जो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दंड हो वो स्वीकार करने के लिए तैयार। अगर प्रॉपर्टी ओनरशिप कोई क्राइम नहीं है, अरे नहीं है, मैं करूं, मैं है नहीं ना। बाबा उनके बारे में क्या कहेंगे, उन फौजियों के बारे में क्या कहेंगे जो ड्रिंक करते हैं? ऐसे ये बताओ, आप अभी शादीशुदा हैं कि बच्चे हो गए कि ना? नहीं। आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप उनको दारू पिलाएंगे? जब बड़े हो जाएंगे शायद। अरे नहीं, उनके साथ शेयर करूंगा ड्रिंक में भी। नहीं, छोटों को तो नहीं पिलाओगे। नहीं। आपके माँ बाप ने आपको क्या कहा था, बेटा दारू पीना है कि नहीं पीना? मेरे ऊपर छोड़ दिया था, कॉलेज तक तो नहीं पीने दिया था। नहीं पीने दिया था ना। तो जो बड़े होते हैं उनका यही कर्तव्य होता है। सरकार चाहे कितना ही बड़ा मंत्रालय चलाती हो और उससे कितना ही रेवेन्यू लेती हो, एक मद्य निषेध मंत्रालय भी चलाती है। तो मैं मद्य निषेध मंत्रालय का सदस्य हूं। कहने का मेरा तात्पर्य, समाज के जो भी लोग जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वो समाज को एक अच्छी धारा में लेकर के जाए। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, शराब पीने से देश का कौन सा बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा? तो लोगों को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि आप, यदि आपको लाइफ को एंटरटेन करना है तो उसके हम दूसरे विकल्प उनको देते हैं। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हैं, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो है जब युद्ध हो तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाइए। तो आप जो है
शराब पीने को आप आदर्श कभी भी नहीं मान सकते। ये महात्मा गांधी का देश है। One quick statement, then we take questions because we are नो running आई late. थिंक द क्वेश्चन इज बाबा चॉइस की बात है। अब चॉइस लोगों को आपको अब देनी यूं है। कोई पीता है तो बाबा किसी का जाके हाथ थोड़ी पकड़ता है। नहीं, हमें डर लगता है कि आप पता नहीं क्या कर दोगे, पावर में आ गए तो बंद ही करा दोगे सब कुछ। क्योंकि चेतन जो कहना चाहते हैं वही है, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं है, अल्कोहलिज्म की बात नहीं है। अगर आप पावर में आए तो आप क्या इसको, अगर सोच लीजिए आप कल पावर में आ गए, आप क्या प्रोहिबिशन ले आएंगे? आप क्या बोलेंगे पक्ष में सुप्रीम योगा कोर्ट या करा हाई दोगे? कोर्ट गलत है कि बोल रही है कि होमोसेक्सुअलिटी इज ओके, इलीगल नहीं है? ऐसा है, देखो, कानूनन और गैर कानूनन होना अलग बात है। यहां सब सभ्य लोग बैठे हुए हैं, ये सबके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। कानूनन और गैर कानूनन होना एक अलग बात है, और कोई चीज का नैतिक और अनैतिक होना एक अलग हाँ, बात पर वही तो आप जंप लगा रहे हो ना, आप नैतिकता से कानून की तरफ जा रहे हो। जब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो देन वी हैव टू कंसीडर इसीलिए दैट। अब दोनों, अरे मैंने अब बात पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं, और दोनों तरफ से जो भी प्रहार आ रहे हैं नहीं 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 नहीं, उनको, मजाल हमारी बाबा। और उनको पूरी प्रामाणिकता से उत्तर दे रहा हूं। देखो, आप गो हत्या करना या सुअर की हत्या करना, इसको आप नैतिक धरातल पर देखेंगे, धार्मिक आध्यात्मिक धरा पर देखेंगे तो अलग उत्तर आएगा, लीगली देखेंगे तो अलग उत्तर आएगा। जी। इसी तरह से जितनी भी ये बातें की जा रही हैं, आप शराब के बारे में बात करें, कोई भी समाज का सभ्य व्यक्ति हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में उस बात को, चाहे वो और दूसरी भी नशे हैं, खाली शराब ही क्यों, अफीम भी है, और भी क्यों, आगे क्या बोलते हैं उसको, एक तो हीरोइन होती है, दूसरी क्या होती है वो? दूसरी वाली हीरोइन नहीं, लेट्स ओपन अप द फ्लोर। बाबा जी, बहुत सारे सवाल भी आएंगे मेरे ख्याल से। द लेडी तो- राइट देयर एट द बैक। नशे को हमारे समाज ने कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया है। यदि कोई करता भी है तो उसको कहा जाता है कि इससे बाहर निकलो, जी, जिससे कि समाज हमारा ज्यादा सृजनात्मक हो, गुणात्मक हो, सकारात्मक हो, उत्पादक हो। नमस्कार बाबा, मैं उन अधर्मियों और पापियों में से हूं जो राजनीति में हैं, इसलिए जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। आप एक योग गुरु के रूप में पूरे विश्व में, देश में जाने जाते हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं और हजारों करोड़ों आपके अनुयायी हैं। बहुत साल तक आपने समाज कल्याण का काम किया है एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ इट। कहीं इस पूरी यात्रा में एक भ्रम तो पैदा नहीं हो गया आपके दिमाग में कि ये लाखों करोड़ों लोग जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे डिसाइपल्स हैं, कल को जब मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा तो ये मेरा वोट बैंक बनेंगे? कहीं ऐसा तो आपके मन में विचार नहीं आ गया? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जो कुछ रामलीला मैदान में आपके अनुयायियों के साथ हुआ बहुत खराब था, निंदनीय था। एंड जस्ट वन रिजॉइंडर टू मिस्टर भगत, इफ ही इज पॉपुलर एंड पीपल see him as a role model or they follow him, what's wrong if he wants to join politics? Thank Okay. you. आप वोट बैंक बना रहे कि नहीं? आर यू क्रिएटिंग अ वोट बैंक आउट ऑफ योर फॉलोअर्स हु देखो। फॉलो यू ऑन योगा? मैं, वो बहन मेरा समर्थन भी कर रही है, एक प्रश्न भी पूछ रही है, बहुत सहजता से मैं उत्तर दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इस देश के लोगों को राजनीति के शुद्धिकरण के लिए, उसके पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करते हैं, मैं तो नहीं कहता कि सभी जो राजनेता हैं वो पापी अपराधी हैं। तो एक प्रश्न किया मैंने और उत्तर ये था मेरा उसका कि राजनीति में अच्छे लोगों को होना ही चाहिए, और उसके लिए मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूं। और यदि किसी को मेरी फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर कोई ज्यादा ही शक हो रहा हो तो मेडिकल चेकअप करने के लिए ले चलो मुझे, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैं कोई भ्रमित नहीं हूं, कोई सिरफिरा नहीं हूं, और बेसिर पैर की बातें नहीं करता हूं। किसी भी बात को मैंने किया तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक दिया, और आप करप्शन, ब्लैक मनी और जो हमारे सिस्टम में जो जो गलत है उसको हमने ठीक करने की बात की। और दूसरे जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी आप ले तो उसके ऊपर भी मैं बात करूं। Chetan, the other point is what's wrong? What's No, wrong? I- What's but wrong in I- Baba I don't Ramdev think- going into politics? Because you are also writing, you are also No, but I coming said onto the that I think stage it's today. good. It's a free country. He can go, but if he wants to win, this is not how it's going to happen. That's all I'm saying. He can go. बिल्कुल जाना चाहिए। किसी भी कोई भी इस कमरे में जाना चाहे पॉलिटिक्स में जरूर जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जा रहे हैं मुझे लगता नहीं है यूथ इनका इतना साथ देगा जितना इनको लग रहा है।
पर मैं तो इनको कह रहा हूं, आपको मैं सलाह दे रहा हूं, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, अगर अच्छे दिन पर देश कैसे चलता है वो तो सीख लीजिए थोड़ा, बातें करके इंटरटेनिंग स्टेटमेंट्स देके सर। अब आप लोग जो है होमोसेक्सुअलिटी से देश चलाना चाहते हैं, दारू पिला करके देश चलाना चाहते हैं, ये तर्क दे रहे हैं आप लोग। देखो ये भी बात समझ में नहीं आती है। क्या पूरे देश के युवाओं को होमोसेक्सुअल बनाना चाहते हैं? नहीं। पूरे देश के इस युवाओं को शराब पिला करके उससे देश चलाना चाहते हैं? ये भी बात गलत है। मैं लिबर्टी में देखिए, मैंने उस चीज को कह दिया जितना कहना था, संतुलित वे में। लेकिन आप ये कहना चाहें कि मैं यदि शराब का विरोध करता हूं, कि मैं ये कहता हूं कि लोग जो है, अच्छा यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें यंग्स भी हैं, दूसरे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कि भाई मैं यदि किसी को नशा ना करने की सलाह देता हूं तो क्या मैं गलत करता हूं? अरे बोलो तो सही, ये सामने पूछे। ठीक है, आप करो, कोशिश करो, फिर देखते हैं नहीं, क्या होता है। अब अच्छा इनको भी नहीं मानते आप। बात लिबर्टी की है, लिबर्टी इज अबव योर अच्छा, व्यूज। मैं अगर वही सवाल थोड़ा सा घुमा अच्छा, के, महात्मा मैं वही गांधी जी सवाल ने शराब का विरोध किया, बिल्कुल। तो क्या महात्मा गांधी गलत थे? यदि बापू गलत नहीं थे तो बाबा कैसे गलत है? अगर यही सवाल हम थोड़ा सा घुमा के पूछें कि अगर बाबा रामदेव बोले कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, बाबा रामदेव टुमारो कम्स इनटू पावर एंड सेज देयर शुड बी प्रोहिबिशन, हाउ मेनी वुड यू से ही इज राइट? मैंने जब कहा नहीं तो आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हो? मैंने आपको अपना प्रवक्ता कब बनाया था? तो बाबा रामदेव, जब यही बात हो रही है कि लोग इसी बात से डर रहे हैं कि आज जो डर तो आप लोग बैठा रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो आप शिविर में कहते हो ये चीजें होनी चाहिए, ये जब पॉलिटिक्स में आओगे इनको इन्फोर्स नहीं करोगे, ये अश्योरेंस है आपसे? तो मैं कहां इन्फोर्स किया? पहली बात तो ये है कि आप मुझे थोड़ा पूरा सुनने के लिए या तो 7 दिन मेरे शिविर में आ जाइए, और शिविर में नहीं आ सकते तो कम से कम 6-7 दिन मुझे ठीक से सुन लीजिए। आपका तो ज्ञान बहुत है। अभी अधूरा है, बस अभी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। All right. We have a few questions from the web also that are coming in. One question coming in for Chetan from Jamal. Chetan, do you think that Baba Ramdev is at least on the right path to bring in black money because he's made the country aware about black money? बाबा को आज मैं सुबह भी 4:30 बजे मेरे को उठना पड़ा फ्लाइट के लिए, तो जी टीवी पे बाबा आ रहे थे, मैं सुन के आया हूँ 1 घंटा। तो और मेरी मदर यहाँ है, वो भी सुनती हैं आपको, और मेरी सास भी सुनती हैं, जो कि मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन आप सुनती नहीं, वो मानती है मुझे, मानती भी हैं, और आपको भी कहते हैं बेटे उस रास्ते पर आ जाओ। ठीक है। लेकिन क्या है ना बाबा, कुछ लोगों ने ना मेरे को गलत बना दिया। मैं अपनी सोच के चलता हूं, तो वो चक्कर है, मैं किसी और की सोच पे नहीं चल सकता, मेरे को अपनी सोच के समझना होता है। तो बात ये sorry, what was the question? Is he on the right path? Is he on the, because he's made the country aware. See, बाबा, मैंने आपकी इंटेंशंस को कभी डाउट नहीं किया है। जो आपका योगा में आपने प्रचार किया है, जो आपने अपनी ब्रांड बनाई है, जो आपने वो किया है, ह्यूजली आपने एक्सीलेंस अपनी प्रूव करी है। पहली बात तो ये है, आपने एक जो आपकी अच्छी बातें मैं बता दूं, फेस ऑफ बोला था, तो आपने जो अवेयर कराया लोगों को, वो भी अच्छी बात है। मैं तो चाहता ही हूं कि पब्लिक को मॉरल वैल्यूज की याद आए। जिस चीज आज मॉरल वैल्यूज का नाम तो लिया जा रहा है इस देश में, जो मेरा पूरा क्वेस्ट है पूरी लाइफ का। लेकिन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लेवल, आप में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप हर चीज अपनी डिफेंड करोगे कि एक बार भी नहीं बोलोगे कि चेतन या आकाश आप शायद सही कह रहे हो, मुझे भी बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए, तो फिर वो आपकी चॉइस है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि somebody may be able to help you। कोई सलाह आपको अच्छी भी तो दे सकता है कि आप ही सलाह दोगे पूरी दुनिया को। ऐसा देखो, मतलब आप पहली बात तो यह है कि इतने बड़े सलाहकार होकर के और फिर पहले तो बिना मांगे सलाह दे रहे हो। नहीं मैं काम है। अच्छा देखो, ठीक है, फिर मत लो। और जो है मैं आपका स्वागत करूंगा, यदि आपकी कोई फीस होगी तो वो भी पे करूंगा। आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं, आप कहां से दोगे? मैं अपने अनुयायियों से कह दूंगा, बजाज जी बैठे हैं, बजाज जी आप इनकी पेमेंट कर देना। ये तो वो भी तो वही होगी ना बात। तो अच्छा एनीवे, सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट। सुनो, आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, Okay, यू आर ऑन द Padmaja, राइट। Padmaja has a एक question. मिनट, मैं उत्तर नहीं दूं तो बाबा बोलता क्यों नहीं? किसी बात का उत्तर दूं तो बाबा बोलता क्यों है? फिर अगली बात, जब मैंने योग शुरू किया था ना चेतन, इसमें से ज्यादातर लोग उसके साक्षी हैं, सब लठ लेके मेरे पीछे पड़े हुए थे। बाबा जो कह रहे हैं सब नॉन साइंटिफिक है। मैंने कहा था बीपी क्योर होता है, तो पूरे देश और दुनिया के डॉक्टर जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो पीछे पड़ गए। बीपी क्योर नहीं हो सकता, अस्थमा क्योर नहीं हो सकता, लीवर ठीक नहीं हो सकता, किडनी ठीक नहीं हो सकती, अर्थराइट, ऐसे एक नहीं हजार, क्योंकि रोग तो बहुत है ना,
आज भी मैंने स्वाइन फ्लू के बारे में जब बात की, चिकनगुनिया के बारे में बात की, आज भी मैं बात कर रहा हूं डेंगू के बारे में। 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास इसका समाधान है, मैं करके देता हूं। अब कहो कि सारी चीजों की बाबा मैं उसकी रिजल्ट देता हूं, उसका साइंटिफिक बेस बताता हूं, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताता हूं। अब सारी चीजों का रिसर्च करना हो तो बाबा के पास में चाहिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और बाबा को जितना देश के लोगों ने धन दिया, उससे जो पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय से लेकर के जो था मैंने लगा दिया। अब हर बात के लिए कहते हो रिसर्च करो, रिसर्च करो। सारा रिसर्च कर दूंगा, बीमारियों का भी और ब्लैक मनी का भी। थोड़ा सा मुझे जैसे मैं कर रहा हूं, आप जो आपको लगता है आपकी सलाह का मैं स्वागत करता हूं। आप ऐसा मत, आप यंग हैं, जवानों का मैं सदा सम्मान करता हूं और मैं भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। Ajay Kumar also has a question. Ajay? Yeah, can we have a mic to Ajay, please? Harinder, I'll come to you after that. स्वामी जी, 2 प्रश्न हैं मेरे। जी भैया। नमस्कार। पहला सवाल, बाबा ब्यूटी पार्लर खोलने की क्या जरूरत पड़ गई है? देखो, बाबा ब्यूटी पार्लर हेडिंग ये आज तक का है, लेकिन आपने खोल तो दिया ना ब्यूटी अच्छा, ये प्रोडक्ट्स बताओ, इतने सारे लॉन्च कर दिए, उसकी वजह क्या रही? यदि सबको ब्यूटी चाहिए, और मैं कहता हूं वो ब्यूटी स्वदेशी से होनी चाहिए। योग से ब्यूटी प्राप्त कीजिए, एलोवेरा से ब्यूटी प्राप्त कीजिए और अपनी देसी क्रीम लगाइए। फेयर एंड लवली के इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं? तो आप लोगों को फेयर एंड लवली बनाना चाहते हैं। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि ब्यूटी भी पानी है तो स्वदेशी तरीकों से पाओ, और आपको हेल्थ भी पानी है तो स्वदेशी तरीके से पाओ। आपको पीस चाहिए तो अपनी आध्यात्मिकता से पाओ। और स्वदेशी की बात महात्मा गांधी कहते हैं तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। मैं राष्ट्रपुत्र कहलाने का हकदार तो हूं, क्योंकि मैं स्वदेशी को जीता हूं अपने भीतर तक। चलिए, Padmaja, running short on time. Yeah. All right, on the issue of fair and lovely, that's a completely different debate. Let's not go there. Let's shift the focus back to politics. बाबा जी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में एक दिन आना चाहते हैं, आपने अपनी एक छोटी सी पार्टी भी छोड़ी थी, पॉलिटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो 2-3 चीजें हैं जिसमें आपका व्यू जो है क्लियर एक इस प्लेटफॉर्म पे हो जाए कॉन्क्लेव में। पहली बात, इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, उस पर आपकी क्या सोच है? दूसरा, जो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे उसमें कुछ युवा नेता थे जो बहुत बढ़ चढ़ करके आगे उन्होंने कैंपेनिंग की थी, जो हश्र हुआ उनकी पार्टी का हम सब जानते हैं। राहुल गांधी स्पेसिफिकली, उनके बारे में आपका क्या विचार है? और तीसरा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि बजट जो कल प्रेजेंट हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है? इन 3 चीजों के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। डरी हुई सरकार का, जिसको मैंने कहा है डूबता हुआ जहाज है, उसका एक बहुत कमजोर बजट, क्योंकि कोई वो संकट नहीं लेना चाहते थे। इससे देश के जो बेरोजगार लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो यूथ है, जो इंडस्ट्री है, उसमें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी जिन राजनेता के बारे में, उनके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को सांत्वना देनी चाहिए, उसकी खिंचाई नहीं करनी चाहिए। खिंचाई के लिए नहीं कह रही हूं, वो राजनीति है, राजनीति में आप भी आएंगे, आप साफ करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। जो है उनके आमंत्रित करने पर मैं भी गया था उनके पास में, और मैंने उनको कहा था कि भारत की आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। अब गुरुओं की जगह उन्होंने गुरु घंटाल ले लिए, और जैसे भाई चेतन जी मुझे सलाह दे रहे थे, अब उन्होंने तो, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं साहब, उन्होंने अपने इवेंट मैनेजमेंट के लोग भी शायद उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए। तीसरी बात, आपने कहा एफडीआई के बारे में। अभी इसी बार हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 30,000 करोड़ रुपए आएगा। 1 करोड़ 40 लाख रिटेल की करीब हमारे यहां शॉप्स हैं, उसके ऊपर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस देश के 20-25 करोड़ लोगों का जीवन टिका हुआ है। हम 30,000 करोड़ रुपए का एफडीआई लेके एक धारा खोलना चाहते हैं, जिससे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था करीब 22,50,000 करोड़ रुपए का यह हमारा रिटेल मार्केट है। हमारे करीब जीडीपी का आधा सेल्स से आता है। अब इतने बड़े बाजार के ऊपर हम विदेशी कंपनियों को, दुकान हमारी, सामान भी लगभग हम ही बनाते हैं,
पैसा भी लगभग हमारा ही होता है, थोड़ा बहुत आता है, बाकी फिर यहां से खींच लेते हैं। ब्रेन हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, कंज्यूमर हमारा, सब कुछ हमारा। तो क्या अपने नाम पर, अपने ब्रांड पर, अपने ऊपर हम भारतीयों को भरोसा नहीं है? मैं चाहता हूं इस देश के अंदर देसी ब्रांड इतने बड़े खड़े हो जाएं कि उनके सामने वॉलमार्ट और टेस्को आदि सब फीके पड़ जाएं। मैं तो इस बात का पक्षधर। नौकरियां भी हमें ही मिलती हैं। Harinder, last question. नौकरियां बढ़ेंगी बहन, मैं आपको पूरा मैं डेटा लेकर के आया हूं। आप चाहो तो मैं पढ़ाई भी करता हूं, अनपढ़ नहीं हूं। हिंदी जानता हूं, इसका मतलब अनपढ़ नहीं होता है। इस देश के अंदर अंग्रेजी जानने वालों को पढ़ा लिखा माना जाता है, हिंदी जानने वालों को बेवकूफ समझा जाता है, यह भी बहुत गलत बात है। तो मैं आपको पूरा इसका स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं कि किस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर इस देश में आई तो 24 लाख रुपए मात्रा लेकर के आई थी। 24 लाख रुपए। आज उस कंपनी का टर्नओवर है करीब 24,000 करोड़ रुपए। आज उस कंपनी का 1 लाख करोड़ रुपए की करीब उसका आर्थिक साम्राज्य इस देश के अंदर है। पैसा लेकर के नहीं आई, पैसा यहां से पैदा किया और यहां अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाया। ये हाल जो है जिस पहली कंपनी ने हिंदुस्तान का किया था और गुलाम बनाया था, सब ईस्ट इंडिया कंपनी के को जानते हैं। कोलगेट पेप्सोडेंट, कोलगेट कंपनी, पेप्सोडेंट तो क्या यूनिलीवर का है, कोलगेट जो है पामोलिव, वो 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तान में लेकर के आई थी। आज उसका 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो टर्नओवर है। तो ये ना तो पैसा लेकर के आती है, ना रोजगार बढ़ाती है, ना निर्यात को बढ़ाती है, ना प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आती है। साबुन, शैंपू और ये सब क्रीम पाउडर और अचार चटनी बनाने में कोई टेक्नोलॉजी लगती है क्या? हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ये सत्ताओं की शिकड़ पर बैठे लोग झूठ बोल देते हैं और उनके हम पोषक बन जाते हैं। मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। कोई तर्क कर सकता है मेरे से इस बारे में? Okay. My question is for Baba Ramdev. Baba Ramdev जी, ये आवाज किधर से आ रही है? पीछे एकदम से, सीधे। पीछे से। हाँ 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 जी जी, प्रणाम प्रणाम बहन। ये तो सब मानते हैं कि आपके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, मगर आपने एक महिला के कपड़े पहन के रफू चक्कर होने की कोशिश की रामलीला मैदान से, लाठियां आपके सपोर्टर्स को पड़ी। बुरा मत मानिए, पर ऐसा काम क्या भगोड़े नहीं करते हैं? तो बहन जी, पहली बात तो यह है कि इस बात का मैं पूरा उत्तर तो थोड़ी देर में दूंगा। और माताओं के वस्त्र किसने पहने, हमारे अर्जुन से लेकर के और हमारे भगवानों तक। और माताओं को अपने वस्त्रों पर इतना ज्यादा आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए कि जब वो वस्त्र बहुत घटिया हैं। मैं इससे आगे की टिप्पणी नहीं करना चाहता। और इनकी मंशा क्या थी, मैं पहले कई बार इसको जाहिर कर चुका हूं। आपने न जाने किस संदर्भ में पूछा है, इसका पूरा जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा, क्योंकि मैं इसका बहुत बार जवाब दे चुका हूं। और मैं यदि आज आपके सामने बैठा हूं तो कुछ करने के लिए बैठा हूं। और उस दिन बाबा रामदेव खत्म हो जाता, उससे आपको खुशी होती, तो वो खुशी आप आज भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको छूट है। Final. A final question to you, Chetan. Ramdev ji has managed to monopolize a lot of this session, but you spoke at length about everything that is wrong with politics. You agreed with a few things that Baba Ramdev also said. A lot of people rant about everything that is rotten in politics, everything that is going wrong. But let's just put it out there. What is the right kind of politics? What do people like you really want, and people who support you? I think we need real leaders, and leadership is about somebody who has some good ideas, somebody who will do the right thing and not look at votes or power or money every day, and somebody who will look at making India that is modern, based on excellence and based on truth. It's But not. that's a very utopian view, don't you But think? Dinesh this- Trivedi thought he was doing something Yeah, so for India, Dinesh but- Trivedi thought he has failed in the sense that because of the current, it's the first, I think it's the only country in the world where people get fired for doing a good job. But he has been noticed by the youth. He has been noticed, he's become an overnight star. Why? Because he did the right thing. And there'll be more Dinesh, 10 more after that, and then be 20 more after that, and we'll slowly start voting for these people. And once we start voting for these people who have ideas, who have economic policies, rather than people who do, put on a show or appeal to some of our emotions, then we will get on the right track. I think new people should come to politics. I think he's a welcome addition. In fact, I genuinely believe that he could have done better in terms of his political career based on some of the strategic moves, but maybe he knows what he's doing and I don't.
but I do feel it can improve this just this way, by having good leaders who have good character, who are willing to listen to views of everybody, who have a modern outlook. You know, we need a good, honest leader, but we also need a modern leader. Honesty is there for sure, even if I give him that. But we need a modern leader too. I don't want an honest India that is poor. I want an honest India that is rich. That's all. ममता बनर्जी को बड़ा गुस्सा आता है, योग करना चाहिए उनको? ऐसा है, देखो, ममता जी के अंदर ममता तो बहुत है, लेकिन वो डूबते हुए के साथ नहीं बैठना चाहती, और आप उसको गुस्सा कहेंगे तो मैं उस गुस्से को कभी खत्म नहीं करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका पूरा उत्तर देते हुए, इस देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, ब्लैक मनी कितना और कैसे वापस आएगा। मैंने कहा 50 से 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर है, और उसके पूरे तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के। इलीगल माइनिंग में करीब 90% ब्लैक मनी है, और ड्रग्स के अंदर करीब 90% ब्लैक मनी है। इसी तरह से काला बाजारी में और पॉलिटिक्स में और रियल एस्टेट में भी 3 से 4 गुना ब्लैक मनी है। एक बहुत बड़ा विषय है ये, इसको वापस लाने का राइट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना चाहिए, तो ये हिंदुस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है, और हम इसको बनाएंगे, चाहे कितने ही वाद विवाद हो, कितना ही तिरस्कार हो। पहले हमने योग को विवादों के बीच में शिखर पर पहुंचाया। ब्लैक मनी, करप्शन एंड करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की इस प्रक्रिया को भी हम पूरी ताकत लगा करके आगे बढ़ाएंगे, और इस बार मानसून सत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मूवमेंट के साथ इस सरकार को एक सबक सिखाएंगे, या तो अपना संवैधानिक दायित्व निभाओ या सत्ता छोड़ो, और एक राजनीतिक परिवर्तन की आधारशिला 2012 में होगी, आपकी आंखों के सामने होगी। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। Ladies and gentlemen, you might agree or not agree with Baba Ramdev, but one thing is absolutely clear. You can ask him any question and he will answer that, unlike a lot of politicians that we have noticed of late. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Baba Ramdev, and of course for Chetan Bhagat also for this brilliant face-off that we've had. All right, quite a heated session there. I think everyone would probably want to do some pranayam. Thank you very much, Chetan. Thank you, Baba Ramdev. Can I please now request Mr. Ratul Puri, Chairman Mozo Bear Projects Private Limited, to please come on stage and give a token of our appreciation to both the gentlemen. Can we please again have a round of applause?